हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम अमन केपी, कंप्यूटर टीचर, क्लास थर्ड। आप लोग कैसे हैं? जैसे कि हम आपको पिछली क्लास में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, आज उसका रिवीजन करवा रहे हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, फिर से पढ़िए। तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर के जब हमारे पास कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है सॉफ्टवेयर, क्या होता है हार्डवेयर? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको हम लोग पढ़ लें और जानकारी जान लें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है ना। तो बच्चों देखिए ध्यान से, वी आल react differently according to the stations. Have you ever thought how it becomes possible? Let us understand this with the help of an example. What happens when your teacher asks a question and you know its answer? You simply raise your hand, isn't it? What promote you to raise the hand? It is the brain that gives you instructions to react in this manner. Similarly, a computer gets all the instruction from the software to perform various tasks. Software is the soul of a computer, without which it cannot exist. Computer is a machine. जैसा सब आप सबको पता होगा बच्चों, कंप्यूटर एक मशीन है। That does not possess my intelligence of its own. A computer without instruction is like a car without a driver. जिससे बिना इंस्ट्रक्शन के या बिना ड्राइवर के कार नहीं चल सकता, उसी प्रकार कंप्यूटर है, बिना इंस्ट्रक्शन का नहीं चल सकता। इट रिक्वायर्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर टू वर्क ऑन। These sets of instructions are called programs, which are written in computer language. Software is the collection of programs that are stored and run on computer hardware and help users to work on the computer. Software is that part of a computer which cannot be touched or seen. Software is of two types. Software is of two types: सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या है, दो ऑप्शन दिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और लैंग्वेज प्रोसेसर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक
पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक बच्चों, आगे क्या है दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर is defined as a collection of programs that controls the overall operation and internal working of a computer system. It reads data from input device and transfers the processed information to output devices. आगे क्या बच्चों देखते हैं। आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर is of three main types: operating system, language processor, and utility software. Operating system. Operating system is needed to operate a computer. An operating system controls the overall activities of a computer. It acts as a link between the user and the hardware and enables them to work together. An operating system works like the principal of your schools, as the principal has various responsibility to manage the school, like supervising students, teacher and workers, maintaining discipline, setting the examination schedule, timetable, curriculum, and attending parents and visitors, etc. In the same manner, an operating system performs various functions to manage the working of a computer. Imagine what will happen if there is no principal in a school. Everything will be mismanaged. Similarly, if the operating system of a computer is not working properly, then you cannot work on it. तो बच्चों एम एस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडो 8, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल्स of some popular operating system. Function of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन है? The main function of an operating system are device management, input output. An operating system controls the working of all input and output
10 डिवाइसेस। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तक। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तक हम लोग पढ़ते हैं। कल की क्लास में हम लोग फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बताते हैं हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है आप लोग ध्यान से सुनिए और इसका रिवीजन करिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हार्डवेयर क्या है, पहले हार्डवेयर बताते हैं फिर सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर भौतिक घटक या उपकरण है जो कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। मतलब हार्डवेयर वही होता है जो कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, जैसे यूपीएस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। ये हार्डवेयर जो कंप्यूटर का ये सब निर्माण करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में शामिल हार्डवेयर के विभिन्न उदाहरण हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू आदि हैं। इन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। सरल शब्दों में, मतलब आसान शब्दों में, हम इसे भौतिक रूप से आसानी से देख, छू और महसूस कर सकते हैं। मतलब हार्डवेयर वो होता है जो ठोस होता है, जिसको हम भौतिक रूप से छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, जॉयस्टिक, प्रिंटर, ये सब हम लोग छू सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसे छू सकते हैं और फीलिंग भी होता है, महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि हार्डवेयर को एक ठोस घटक माना जाता है। यही कारण है कि हार्डवेयर को एक ठोस घटक माना जाता है। हार्डवेयर के उदाहरण, इसे मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन आदि इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होने वाले डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, स्पीकर जैसे आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए बनाए गए हैं। डिवाइस आउटपुट डिवाइस होते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है और परिणाम उत्पन्न करता है। जैसे हम कोई कीबोर्ड से कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हैं या पिक्चर बना रहे हैं, कोई फिगर बना रहे हैं, तो सीपीयू वो अपने अंदर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके हमको रिजल्ट देता है सिस्टम पे। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? जो मेरा मेन चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। अब एक सॉफ्टवेयर क्या है और यह हार्डवेयर से कैसे अलग है? सबसे आवश्यक बात यह है कि सॉफ्टवेयर अमूर्त है। अमूर्त मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता। मूर्ति को तो देखा जा सकता है ना, अमूर्त मतलब नहीं देखा जा सकता। ठीक है, अमूर्त है, जिसका अर्थ है कि हम इसे भौतिक रूप से स्पर्श नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं? नहीं, बस इसे केवल देख और महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के उपयोग के बिना एक हार्डवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर का उपयोग नहीं हो सकता। जैसे हमें पेंटिंग बनाना है या टाइप करना है, तो हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा ही नहीं, तो हम कैसे बनाएंगे? तो बेकार है।
बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है। तो बच्चों, हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें निर्देश के एक सेट की आवश्यकता होती है। हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें एक सेट की आवश्यकता होती है, जिसे आमतौर पर सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। बड़ी संख्या में ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनका उपयोग ज़रूरत के अनुसार किया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वीएलसी प्लेयर, जिम और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़। अब सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों होती है, इसको भी पढ़ लें, जान लें हम लोग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का समूह है। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। जब तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ नहीं होंगे तब तक कंप्यूटर पे काम करना मुमकिन नहीं है। ठीक बच्चों, तो उसी प्रकार कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। यदि इसमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान रह जाएगा। जैसे हम सब जितना एप्लीकेशन है, जितना सॉफ्टवेयर, सब डिलीट कर दें, सब अनइंस्टॉल कर दें, उसमें रहे ही ना, तो केवल डिब्बा रह जाएगा। उसमें कोई काम नहीं कर सकते, गेम तक नहीं खेल सकते, कुछ नहीं हो सकता, तो वो केवल डिब्बा रह जाएगा। ठीक है, जब तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड न किया जाए, इसका अर्थ है यह है कि कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? कंप्यूटर चालू करने के लिए, पत्र टाइप करने के लिए, चार्ट का निर्माण करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर चालू करने के लिए मतलब ऑन ऑफ करने के लिए, पत्र टाइप करने के लिए मतलब जो हम लोग लेटर टाइप करते हैं, ठीक है, टाइपिंग करते हैं, चार्ट निर्माण करने के लिए, चार्ट मतलब जो हम लोग कोई बनाते हैं टाइम टेबल वगैरह, वो चार्ट होता है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मतलब जैसे हमने कोई ड्राइंग बनाया है, उसका प्रेजेंट करने के लिए अपने सर मैम के पास प्रेजेंट करना है, तो उसे हम एनिमेशन के द्वारा प्रेजेंटेशन जाके प्रेजेंटेशन में बनाएंगे, तो प्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन वैसे बिजनेस के लिए ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो जाके अपने बॉस के पास उसे प्रेजेंट करते हैं और दिखाते हैं। ठीक है, तो आगे आता है डाटा को मैनेज करने के लिए, जो हम डाटा इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, और इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए। जैसा कि सभी लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं बच्चे, तो इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए। सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या हैं? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हार्डवेयर और कार्य के बीच बातचीत के तौर तरीके के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर अब तो बहुत हो गया है, तो उसी हिसाब से कार्य के बीच बातचीत और तय तरीकों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब सबको अलग अलग भागों में बांटा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, हम लोग पढ़े ना, ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क स्थापित करके कंप्यूटर में ऑपरेशन करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे विंडोज़, फेडोरा, लिनक्स, एंड्रॉयड, W2 ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। प्रोग्रामिंग टूल क्या होता है? निर्देशों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं की मदद से लिखा जाता है, क्योंकि प्रोग्रामर कंप्यूटर की भाषा को नहीं समझता है। प्रोग्रामर कंप्यूटर की भाषा को नहीं समझता है। तो बच्चों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आज मैंने इतना बताया। इतना आप लोग पढ़िए और ध्यान से वीडियो देखिए। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से फंक्शन होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम तक पढ़ा।
और उसके टाइप्स पढ़े। तो बच्चों थैंक यू।